स्टूडेंट ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਵਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ 'ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਏ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਬੀਟਾ ਪਲਸ 2 ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਬੀ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਬੀਟਾ ਪਲਸ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਕਾਸ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਈ ਅਰੇ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ 1 ਐਡ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ 1 ਐਡ ਕਰੇ ਤੇ 2 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਪਲਸ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਕਾਸ ਬੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਪਲਸ 2 ਟਾਈਮਸ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਕਾਸ ਹੈ ਕਾਸ ਵੀ ਪਲਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਾਸ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਏ ਸਕੇਅਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ, ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਵਾਲੀ आगे लिख लेना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। सो माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये वाली चीज़ आपने लिख ली हैगी तुहाडे कोल। तो ये चीज़ लिखी गई जी तुहाडे कोल। हुण आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, अगर मल्टीपल फार्मूले 'च होइए तो क्वेश्चन बहुत सौखा हो जाता है, पर इत्थे डेफिनेटली जिहड़ा है इसमें थोड़ा जिहा ध्यान ना करना पएगा। तो अगर मैं पेयरिंग करा तो पेयरिंग के हालात की होणगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर लो, ठीक है जी, या फिर ऐ करो ना चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा करो, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करो, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फे चो दा बीटा घटा लिया, बीटे चो दा अल्फा घटा लिया, ठीक है जी। उस तो बाद नैगेटिव कॉमन निकाल लो तो अंदर आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा,
हाँ जी, सो ये चीज़ आ गई जी। तो अगर इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ थोड़ी जी एडजस्टमेंट ਇਹਦੀ ध्यान ਨਾਲ देखियो, बाकी सारा क्वेश्चन आराम ਨਾਲ हो जाना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो मैं उत्थे पेज रख लिया जी, थोड़ी एडजस्टमेंट आराम ਨਾਲ समझ आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर बड़ा सौखा जिहा बन गया, बड़ा कैची जिहा बन गया भी अपना काम बनता पिया है ना। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ क्या कॉस स्केयर अल्फा ते साइन स्केयर बीटा का फार्मूला है कोई जी? याद करो, कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी कॉस ए प्लस बी सीगा ते कॉस ए माइनस बी सीगा। ठीक है जी। जे तुहानू पिछला लैक्चर याद होवे तो मैं बड़े आराम नाल लिख सकदा वा, अगर नहीं याद फिर तो दिक्कत आनी आनी है। अगर मेरे पास कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी सी, तो शायद इसनू मैं लिखा सीगा कॉस ए माइनस बी, और जे मेरे पास साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी सी फिर साइन ए प्लस बी। सो मेरे को रूल हैगा है जी, और इनू मैं हुण यूज़ करन लग्या वा। इत्थे यूज़ करूँगा तो ये बनूँगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा जोड़ एदा बनूँगा कॉस, वही चीज़ है। सो बीटा प्लस अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा। तो अल्टीमेटली तो सिर्फ अल्फा बीटा ही चेंज होए है ना, होर तो कुछ नहीं चेंज होया ना। सो ये कॉस कॉस माइनस साइन कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बीटा प्लस अल्फा कॉस ए बीटा माइनस अल्फा। सो वाली चीज़ होगी जी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो ये तुहाडा बन गया जी। अगर इत्थे तक आपां नूं समझ आ गया तो आपां नूं कोई दिक्कत नहीं गी, अपना सारा क्वेश्चन सैट हो जाना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण तुसीं देखो तुहाडे पास अल्फा प्लस बीटा एच भी हैगा, एच भी हैगा, बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा सेम चीज़ है। क्यों सेम चीज़ है? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। इसका मतलब आ चीज़ बन जूगी 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा ते जिहड़ा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 टाइम्स बन जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जो क्या कुछ कॉमन निकल सकता है? हाँ जी निकल सकता तुहाडे कोल। तो क्या कॉमन निकल सकता तुहाडे कोल? अगर आप इनू ज़्यादा सिंपलीफाई करना होवे, ठीक है, तो आप इहदे विच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो जे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाहर निकल जाए तो ये 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया। ईवन 2 भी तुसी बाहर रख लो तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इनू तुसी अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी 2 भी आप बाहर लीता -1। सो ये साडा मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म विच जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल ये चीज़ बन गई जी तुहाडे कोल। और चैक कर लो पूरा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई अपनी माइनस प्लस सारिया चीज़ां तुहाडे कोल। क्योंकि अगर आप देखिए आप बनाना की हैगा, सो हाँ जी इनू थोड़ा जा एक बार रिव्यू कर लीए जी क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इहदी जिहड़ी हैगी है। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो बिल्कुल सिंपल सीगी, ये जुड़ के 1 बन गया, जुड़ के 1 बन गया। क्योंकि आप चाह रहे हैं टर्म कट जाए, जे टर्म कट जाए ना तो 2 अंदर जाना तो इत्थे प्लस होना चाहिए सीगा। इहदा मतलब आपां नूं कोई सैटिंग करनी पेगी या अपनी कोई मिस्टेक हुई है। सो 2 + 2 तुहाडे कोल कॉस अल्फा माइनस, ये वाली सारी चीज़ तो साड़ी ओके है जी, कुछ ये दिक्कत है नहीं। उस तो बाद बी स्केयर आप आ रखा है कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा। आ देखो बी स्केयर विच ना आ सी जोड़,
सो देखो जी गलती लग गई ना पता। सो बी स्केयर 2 cos अल्फा होगी तो आ हो गया। आ तो कोई दिक्कत वाली गल है नहीं, पर अगर तुसी cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन, सो ये थोड़ा प्लस ही रहेगा, ये थोड़ा प्लस ही रहेगा। ठीक है जी, सो ये थोड़ा प्लस ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हिंट दे दिंदा हुंदा भी तुसी किते मिस करिया। सो आ प्लस सीगा जी, तो यदा मतलब 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा तो प्लस हैगा ही हैगा। सो एक चीज़ होर रहेगी तुहाडे को कि जदों ये प्लस रहेगा तो आता माइनस ही रहेगा। सो कर लो जी फ्रैक्शन, कोई गल नहीं। सो जदों आ वाला माइनस रहेगा तो फिर आता फार्मूला लगे उरे cos ए cos उरे प्लस हो जाएगा। सो ए प्लस हो जाएगा, सो ए भी प्लस हो जाएगा। सो ए प्लस, ये तो प्लस ऑलरेडी प्लस ही लिखा हुआ है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल तुसी माइनस बाहर निकालिया तो प्लस बाहर निकालो। सो लास्ट वाला स्टेप मैं दोबारा लिख, सो लास्ट वाला स्टेप है जोड़ा तुहाडे कोल वो आपां दोबारा 2 टाइम्स cos है। सो तुसी cos अल्फा प्लस बीटा बाहर निकाल लिया। अब थोड़ा cos अल्फा प्लस बीटा बाहर आ गया ना, तो अंदर आ गया थोड़े को 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2। हुण ये सीगी बी स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है जी, सो बी स्केयर माइनस ए स्केयर की वैल्यू आ गई तो बी स्केयर प्लस ए स्केयर की आ गई, दोनों डिवाइड कर दो। सो बी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस ए स्केयर। सो बी स्केयर माइनस ए स्केयर की जी वैल्यू है वो है 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2। ठीक है जी, सो नीचे डिवाइड किया 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2। सो हाँ सारी चीज़ कैंसल। सो थोड़ा आंसर क्या आ गया जी cos अल्फा प्लस बीटा। सो अगर तुसी CDAB फार्मूले ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले कर लोगे तो ये मच बैटर मच ईजीयर क्वेश्चन बन जाएगा, और ये मल्टीपल फार्मूलिया होर भी सौखा बन जाएगा। सो एक कैलकुलेशन सिखानी सी जी, तो सिखा देती। सो आ वाला पोर्शन तुसी होमवर्क करोगे। ठीक है जी, सो पहला क्वेश्चन हो गया जी साडा। सो थोड़ी कैलकुलेशन लो जी, आप आ गए दूसरे क्वेश्चन के उत्ते। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन रूट्स वाला है तो थोड़ा जिहा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन भी बहुत ध्यान नाल समझना है जी। सो 2 या 3 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लैणगे बट तुसी जिहड़ा हैगा पूरा फोकस करना है। अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा बीटा इहदा सॉल्यूशन ने जी तुहाडे कोल, दैन तुसी प्रूव की करना टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अगर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा चाहिदा है तो तुहानूं इहदा मतलब टैन ए टैन बी, मतलब टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट उन्होंने जोड़ उन्होंने गुणा की वैल्यू पता हो। सो जो पता हो तो आप क्वेश्चन किस तरह करना है। ठीक है जी, सो सब तो पहला आप गिवन इक्वेशन उठा लेनी हैगी। सो जी तुहाडी गिवन इक्वेशन है तुहाडे कोल वो हैगी है। सो इस क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल देखना जी। ए टेंजेंट थीटा प्लस बी सीकेंड थीटा माइनस सी। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा है बी सीकेंड थीटा एक पासे रख लो, सी माइनस ए टेंजेंट थीटा दूसरे पासे रख लो। जान के किया क्योंकि जो सीकेंड का स्केयर बनेगा ना तो उन्हें 1 प्लस टेन च कन्वर्ट हो जाए। हूँ ये स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करोगे तो बी का स्केयर आ जाएगा, सीकेंड स्केयर थीटा आ जाएगा, सी स्केयर प्लस ए स्केयर टेन स्केयर थीटा माइनस ए सी टेन थीटा। सो ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया। अब सीकेंड नहीं चाहिए, टेन क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक तो 2 रूट्स किया तो क्वाड्रेटिक बन जूगी। सो 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। सो ये बन गया सी स्केयर प्लस ए स्केयर टेंजेंट स्केयर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा हो गया जी। हुण इस क्वेश्चन नूं टेन च क्वाड्रेटिक बनाओ। टेन च किवें क्वाड्रेटिक बनेगी जी, बी स्केयर टेन स्केयर थीटा सी स्केयर ए स्केयर टेन स्केयर थीटा माइनस 2ac टेन थीटा। सो इनू उधर लै जाओ। सो ये बनेगा तुहाडे कोल परले पासे जो तुसी लैके जाओगे। हाँ जी, चाहे इनू उधर लै जाओ चाहे उन्होंने इधर लै जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं, बट टेन स्केयर तुसी क्वाड्रेटिक बनानी है।
सो लो जी आ ए स्केयर आ पे ना ये को इनू लै जाओ। सो माइनस बी स्केयर टैन स्केयर थीटा। सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर टैन स्केयर थीटा होगी जी। पहले ए वाली वैल्यू आता है एवं पई है 2ac टैन थीटा आ भी पई है। इधर कौन रह गया सी स्केयर चो बी स्केयर कट गई इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इन टैन थीटा है। थोड़ी क्वाड्रेटिक इन एक्स होंगी सी ना और एक्स स्केयर और एक्स ते कांस्टेंट होती सी। सो ये क्वाड्रेटिक इन टैन थीटा है। जो क्वाड्रेटिक इन टैन थीटा है सो ये रूट्स होणगियां जी तुहाडे पास। ठीक है जी। सो ये रूट्स आप लै लिया एक टेंजेंट अल्फा लै लिया एक टेंजेंट बीटा ले लिया। ठीक है जी। सो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा अल्फा बीटा इसनों सैटिस्फाई करते हैं। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा ये रूट्स ले लिया तो ये रूट्स ले लिया टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ये सम ऑफ द रूट्स आएगा। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए होंगे 2ac ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो माइनस होंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा सी ओवर ए होंगे सी स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो असी जिहड़ा है टेंजेंट अल्फे की वैल्यू भी निकाल ली जी टैन अल्फा प्लस बीटा की ते टैन अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है जी। क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन दे सोल्यूशन ने इस इक्वेशन तो जो मतलब टैन अल्फा टैन बीटा तो इनू अल्फा भी सैटिस्फाई करता इनू बीटा भी सैटिस्फाई करता इसे तो आ बनाई है। सो टैन अल्फा टैन बीटा रूट तुसी लै सकते कोई दिक्कत नहीं। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण आपां देखिए कि इसनूं आपां ने किद्दां करना हैगा। सो जो आपां शो करना है वो हैगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। सो उसकी वैल्यू लिख ली आप टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है जी। नीचे आ गया 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सो टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू बन गई 2ac नीचे ए स्केयर माइनस सी स्केयर बी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की कितनी। सो ये आ गया जी। सो जो ये चीज़ आ गई तुसी एलसीएम लैके टर्मा कट देना हिटी ए स्केयर कटी जाएगी 2ac आ जाएगी नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर कटी जाएगी ए स्केयर माइनस सी स्केयर आ जाएगी। सो आप शो करना सीगा जो 2a स्टेटमेंट ठीक कर लो माड़ी जी इतने 2ab नहीं इतने ac सीगा। ठीक है जी। सो टैली कर लियो थोड़े को बुक विच क्वेश्चन होएगा। ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं होया तो सी करता सी ही है एक्चुअली। ठीक हो गया जी। सो ये इक्वेशन जिहड़ी हैगी है अपने कोल आ गई तो अपना क्वेश्चन आराम नाल बन गया। इत्थे सिर्फ ये डाउट ना करो टैन अल्फा किमें आ गया टैन क्वाड्रेटिक है। अल्फा क्यों ले लिया थीटे की थां ते अल्फा लिया जा सकता है क्योंकि वो इसकी रूट है। मीनस एक तरीका ये भी हैगा तुहाडे कोल अगर कोई बंदा जनरलाइजेशन च ना समझे भी नहीं जी मेरा टैन अल्फा टैन बीटा नहीं वो क्यों फिर वो 2 बार क्वेश्चन होगा क्योंकि अल्फा बीटा आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इत्थे ना अल्फा भर दो इत्थे टैन अल्फा भर दो सारी स्केयरिंग करो और रूटी सारी अल्फे च आ जानी टैन अल्फे च उसनों सॉल्व कर लो टैन अल्फे की वैल्यू निकली होगी। फिर दोबारा इत्थे बीटा भर दो स्केयरिंग कर लो आ इक्वेशन आ जो टैन बीटे की। सो टैन अल्फा टैन बीटा 2 अड्ड कट के भी क्वेश्चन कर सकते ज़्यादा औखा हो जाएगा बट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। सो अगला वाला क्वेश्चन फिर उसी तरह हैगा तुहाडे कोल अल्फा बीटा आर द सोल्यूशनस ऑफ दिस। ठीक है कॉस अल्फा माइनस बीटा थे आ। सो यदा भी मैं एक पार्ट करना जी एक पार्ट तुसीं खुद तो ट्राई करना है। सो की करना है वो देखो अल्फा बीटा आर द सोल्यूशनस ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है अल्फा बीटा तो यदा मतलब है सिंपल जी गल है अल्फा कॉस थीटे की थां ते अल्फा जा सकता साइन थीटे की थां ते अल्फा जा सकता तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। तो हुण आपां ने बनाना की हैगा तुहाडे कोल। सो आपां 2 चीज़ां बनाणियां ने तो 2 चीज़ां बनाने लई जो जो चाहिए तुसीं सिर्फ वो लिखना है। जस्ट मैं हिंट लिख के क्वेश्चन छोड़ देना हैगा तो ख्याल रखियो भी किस तरह हैगा तुहाडे कोल। सो अगर आप क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन की इक्वेशन 2 बार बनेगी एक बार की बजाय किमें बनेगी मैं तुहानूं दसदा हां तुहाडे कोल। अगर मैं ये वाली चीज़ ले ला तुहाडे कोल सो सोल्यूशन लईए जी। सो ये क्वेश्चन ध्यान नाल देखना ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। इस लेक्चर जिन्ने भी क्वेश्चन है सारे डिफ़िकल्ट हैं
तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का स्कूल हो फिर क्वेश्चन आते, अदरवाइज़ तो नेड़े नहीं लंघता कोई इन्होंने क्वेश्चनों के। ठीक है, सो थोड़ा जिहा ध्यान ना रखना। हुण आपां नूं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, मैं की करदा वां, एक चीज़ नूं परां लै जाओ, पहलां कॉस च बना लैंदे, ये तां साइन दोनां च ही बनानी पैनी है, क्योंकि जिहड़ा कॉस है ना, तुसीं अगर मैं कॉस अल्फे इहदी वैल्यू करदा वां, इहनूं खोल के देखदा तां कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀਆਂ रूट कॉस अल्फा कॉस बीटा भी चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा भी चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ इक्वेशन दोनों बार क्वाड्रेटिक बनानी पैनी है, साइन विच भी तो कॉस विच भी। इस करके ख्याल रखना, पिछली बार कल्ली टैन सी क्योंकि रूट ही टैन च सीगा। सो बी साइन थीटा लिख ली, स्केयरिंग कर ली, ए बन गया कॉस स्केयर थीटा बन गया सी स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा 2bc साइन थीटा। पहला आप साइन विच क्वाड्रेटिक बना लिए जी, जे साइन च क्वाड्रेटिक बनाने करना है तो फिर तुसी की करोगे, तुहाडे पास तुसी एक पासे कॉस रख लिया सीगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा फिल हो सकती है जी, सी स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2, इतने फिर गड़बड़ होगी, मेरे बी सी है बाद गड़बड़। सो आ वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। सो अगर मैं इत्थों देखा तो हुण आपां ने क्वाड्रेटिक काहदे विच बनानी है, क्वाड्रेटिक एक बार साइन च एक बार कॉस च, दोनों चो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना है बस। अगर वो चीज़ ले ली तो अपना क्वेश्चन फिनिश, उस तो बाद तो कोई चिंता वाली गलबात है ही नहीं हैगी तुहाडे को। ठीक है जी, सो देखिए जी तुहाडे कोल भी किस तरह चलना हैगा है। अगर मैं आ वाली चीज़ ले रहा तुहाडे कोल, हुण इत्थे ए स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, सी स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा 2bc साइन थीटा। हुण साइन स्केयर थीटा है तो इनू परले पासे लै जाने, या परली नूं उरे लियाओ, गल तो इनू परां लै जाओ। सो बी स्केयर पहला ही सी, ए स्केयर नाल साइन स्केयर थीटा हो गया, यह परां गई है। ठीक है जी, सो बी स्केयर प्लस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा हो गया, ठीक हो गया जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 2bc साइन थीटा हैगा ही हैगा। ठीक है जी, सो प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। हुण ये साइन च क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है जी, जे साइन च क्वाड्रेटिक आ गई तो ये दो रूट्स मान लो, एक साइन अल्फा एक साइन बीटा। थीटे थां ते अल्फा आ सकता है, यस, क्योंकि अल्फा बीटा है रूट से इनू सैटिस्फाई कर दे, आ सकता। तो साइन अल्फा आ जू, साइन बीटा आ जूगी, आ गई साइन अल्फा, तो मैनू सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए। सो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्रोडक्ट का फार्मूला की होंगे C/A। सो ए स्केयर नीचे बी स्केयर प्लस ए स्केयर। सो ये मेरा पहली क्वेश्चन आ गया, ठीक हो गया जी। सो हले आप क्वेश्चन पूरा नहीं किया, नेड़े तेड़े भी नहीं गए हले तो। सो इत्थे तक हो गया तुहाडा क्वेश्चन, जे इत्थे तक हो गया हुण आप अगले पेज पर चलिए। सो ये लिए तो बड़ा पेज ही चाहिए है। हाँ जी, देखो अगर हुण वही क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, अगे कॉस रखा सी ना इस तरफ, हुण साइन रख लो, बी साइन थीटा इस तरफ, सी माइनस ए कॉस थीटा इस तरफ। हुण बाकी सारा सेम है। हुण आप स्केयरिंग करांगे, तो लो जी, हुण आप स्केयरिंग कर ली, बी स्केयर साइन स्केयर थीटा सी स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ठीक है जी, सो माइनस भी लगना 2ac कॉस थीटा, तो इत्थे बी स्केयर आ गया, इत्थे 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आ गया, सी स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ होगी जी, गुणा करो जी। सो बी स्केयर माइनस बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा, तो सी स्केयर ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ए स्केयर हैगा ही सी, बी उधर चला गया, पूरे बन गया कॉस स्केयर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा, सी स्केयर हैगा ही सी माइनस बी स्केयर। सो कॉस विच चली गई, कॉस नूं सैटिस्फाई करदा अल्फा, तो यदा मतलब है इत्थों भी साडे कोल दो रूट्स आ गए, कॉस अल्फा ते कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, सी स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
तो ये आ गया। हुण मैं लभना की है कॉस अल्फा प्लस बीटा। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस अल्फा प्लस बीटा आ पई है वैल्यू माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा आ पई है। सवाल लो जी थोड़े अगे, ठीक है। तो इतने बी स्केयर सी जी, नहीं तो कट ही जाएगी थोड़ी, ठीक हो गया। सो सी स्केयर ना सी स्केयर कट जाएगा, ए बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, शो दैट देख लो। सो ये हो गया जी, सो ये हो गया। सो सेकंड पार्ट थोड़ा होमवर्क है जी, कुछ नहीं करना है, प्लस है फार्मूला प्लस कर दो, बाकी सारा पार्ट से। सो हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो ये क्वेश्चन साडा हो गया जी, एक्स्ट्रा पेज पे आके। सो लो जी क्वेश्चन की है तो आप बनाना की है तुहाडे कोल। सो बस ध्यान नाल देखियो जी, हुण कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है तुहाडे कोल। ते आपां नूं जिहड़ा हैगा कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कह रहे हैं। बैटर है कि टैन ए प्लस बी बना लो तो उन्होंने उल्टा करके आप कॉट ले आवांगे, ठीक है। सो यदा मतलब आ साइड पकड़ लीए, तो जो आ साइड पकड़ लीए तो ए की वैल्यू की आई टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी माइनस बी की वैल्यू आई कोटेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट बी। सो कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं जी। सो ये कॉट ए प्लस बी बनाना, 1/tan ए प्लस बी बना दो, सब कुछ बन जाएगा। सो इनू तो छेड़ो ना। तो ये कॉट है, इनू लिख लो 1/टेंजेंट ए प्लस 1/टेंजेंट बी। सो मेरा ख्याल है जी इत्थे तक किसी को कोई दिक्कत वाली गल है नहीं गी। ਇਹਦਾ एलसीएम लैके जंप करवा दो इनू उत्ते, ठीक है जी। सो ये लिए बड़ा पेज ले लो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। सो आ है जी क्वेश्चन की सिचुएशन। तो आप देखिए जी, स्कैच बदलिए पहले। सो मेरे को हालात किदा दे आए हैं, पहले मैं लिख ला जी तो जो तुहानू कैलकुलेशन समझ आ जाए। वो नहीं भी दिख रहा, मैं देख के लिख रहा। 1/टेंजेंट ए प्लस 1/टेंजेंट बी। सो आ वाली सिचुएशन नू मैं उधर उतार लिया, ठीक है जी। सो 1/टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। तो जो ये जंप करके टैन ए टैन बी बन गए, सो ये ऊपर आ जाएंगे टैन ए टैन बी। इत्थे की आ जाएगा तो कोल एलसीएम होएगा, सो टेंजेंट बी इधर आ जाएगा प्लस टेंजेंट ए इधर आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी। तो जो ये चीज़ होगी सारे विचों आ बाहर कढ़ लो, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, ये सारे चो बाहर कढ़ लो। अंदर कौन बच गया 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सो ए 1 इत्थे लिखे टेंजेंट ए प्लस, वो सारा जंप करवा के नीचे ले आओ, क्योंकि ऊपर जंप करके ऊपर ही जाऊगा। तो देखो सो इदा लिखा जा सकता है, जे इदा लिखा जा सकता है। सो ए टैन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, उल्टा करोगे तो कॉट ए प्लस बी बन जाएगा। सो मेरा ख्याल है जी आराम नाल क्वेश्चन तुसी देख लिया तो ये बन गया होएगा तुहाडे कोल। सो जी इन्ने क्वेश्चन तुसी करके सिर्फ एडिशन ते डिफरेंस फार्मूले कर रहे हो, 4 लैक्चर्स के बाद तुसी ये कर रहे हो, तो मैनू नहीं लगता कोई भी ठीक ठाक बुक है तुहाडे कोल तुहाडा कोई क्वेश्चन रुक जाए, ठीक है जी। सो ये करो जी, फिर अगला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले हो नैक्सट लैक्चर मिलते हैं। 3-4 लैक्चर वो लावांगे। थैंक यू।